Hi friends, welcome to GS Classroom. This is me Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with the line by line explanation of the poem The Bangle Sellers written by Sarojini Naidu. So my dear friends, Sarojini Naidu was called the Nightingale of India because of her beauty and melody of her poetry, and she played an important and active role in India's freedom struggle. Her birthday is recognized as Women's Day. Okay. Now, the main theme of the poem is that the bangles are a part and parcel of a women's life in India. So that simply means इंडिया में women की life का एक हिस्सा है bangles. Okay. Now, next, if we talk about the poem that is the Bangle Sellers, so we can say that it is a musical verse, as this poem is a song sung by the men who sell glass bangles at village fairs or markets that are organized on festivals or on such auspicious days. Okay. So, in this poem, the poetess has described, three stages of women's life. First, when she's a maiden, means a young unmarried girl, and then when she becomes a bride, means the second stage, a girl who is going to be married, and then the final stage, that is when she becomes a middle-aged woman. Okay. So now each stage of a woman's life is described according to the color of the bangles suitable at that stage, means from a dreamy maiden to an excited bride, and then finally to a mature matriarch. Okay. Now, in this poem, the patriarchy in Indian society is also been shown. So, what is the meaning of patriarchy? So, patriarchy simply means a social, एक ऐसा social setup जहाँ पे father जो होते हैं वो family के और property के head होते हैं, and decision making authority जो होता है वो एक father से pass on होता है उसके son को. ओके. एंड women कंसिडर की जाती हैं सेकेंडरी और वो डोमिनेट की जाती हैं बाय मेन. ओके, सो दे आर डोमिनेटेड बाय मेन. एंड ये जो पोएम है, दिस पोएम दैट इज द बैंगल सेलर्स, इट गिव्स अस मेनी एविडेंसेस दैट पॉइंट्स आउट द पेट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी. ऑल राइट. So now let us come on to the text. See, before coming on to the text, let us see that although इसमें क्या हुआ, इस poem को बहुत सारे critics ने criticize किया है as a celebration of a patriarchal society. But still, it is very important to see that ये जो poem है, The Bangle Sellers, it is a reflection of reality. कैसे? It is the reflection of lives of all those countless women who selflessly devote their lives in the service of their families and their loved ones and never expecting anything in return. ओके. सो अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इफ वी आर टू ट्रूली अपलिफ्ट विमेन, एंड हम चाहते हैं कि वो इस सारे जितने भी शैकल्स हैं पेट्रियार्की के उनसे फ्री हो जाएं, देन वी मस्ट मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड देयर लाइव्स एंड द एक्सपेक्टेशन दैट द सोसाइटी हैज ऑफ देम. गॉट इट? So now let's come on to the text. Here in this poem, that is the Bangle Sellers, in the very first stanza it is given, Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Means among the group of the bangle sellers, one of the bangle sellers is is the narrator of the poem, and he says that it is we who bear our shining loads to the temple fair. So we क्यों लिखा है? We is used to describe themselves and in one voice to tell us that who they are and what they sell. ओके. बेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कैरी करना. एंड देन शाइनिंग लोड्स. सो यहाँ पे शाइनिंग लोड्स किसको बोला जा रहा है? क्या वो कैरी कर रहे हैं बैंगल सेलर्स अपने साथ? सो द ब्यूटिफुल ब्राइटली कलर्ड ग्लिटरिंग बैंगल्स को. ओके. एंड वो जा कहाँ पे रहे हैं? तो वो टेम्पल फेयर्स जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग द फ्रेज शाइनिंग लोड्स, यहाँ पे पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि जो ये बैंगल सेलर्स हैं, ठीक है, वो शाइनिंग इसलिए बोल रहे हैं इनको, बैंगल्स को शाइनिंग लोड्स, जस्ट बिकॉज वो ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऑल्दो बैंगल सेलर्स बैंगल्स को कैरी करके लेके जा रहे हैं, बट स्टिल वो क्या करते हैं? उसको एज अ बर्डन नहीं फील करते हैं. इनफैक्ट वो क्या होते हैं? वो बहुत ही हैप्पी होते हैं. ठीक है. क्यों हैप्पी होते हैं? बिकॉज उनको पता है इसी से उनको क्या है? लाइवलीहुड मिलना है. Despite the toil involved in the work which does not give them enough money for a comfortable living, but still उनको पता है कि इसी से उनको livelihood मिलेगा. Okay, means of earning है वो उनका. Now
टेम्पल फेयर्स ही क्यों जा रहे हैं वो अपने बैंगल्स को सेल करने के लिए? तो वो इसलिए उस जगह पे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक ऐसी प्लेस है विच इज मोस्ट विजिटेड बाय द women ऑफ ऑल एज ग्रुप। ऑल राइट, सो दैट इज द रीजन वो टेम्पल फेयर्स जा रहे हैं अपनी बैंगल्स को सेल करने के लिए। एंड देन दे से who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? This simply means कि वो ये कहना चाह रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे से that how well the bangle sellers are advertising their wares, okay, and कितने अच्छे से वो सारे बैंगल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि कितना वो डेलिकेट है, कितनी ब्राइटली कलर्ड है, और जस्ट लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, जिस तरह से रेनबो में इतने सारे कलर्स होते हैं प्रेजेंट, और यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो बैंगल सेलर्स हैं उनके पास हर किसी विमेन के जितनी भी ऑल एज ग्रुप ऑफ विमेन है, ठीक है, उनकी सबकी चॉइस की बैंगल्स उनके पास है, इतनी वैरायटी ऑफ बैंगल्स उनके पास है। एंड दिस रेनबो टिंटेड आल्सो मींस दैट इट इंडिकेट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ women's लाइफ। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यही जो रेनबो टिंटेड वाइब्रेंट कलर्स हैं, सो दे कैच एंड रिफ्लेक्ट लाइट, एंड दैट इज द रीजन इट इज बीइंग सेड दैट सर्कल्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो सर्कुलर इन शेप है और ट्रांसपेरेंट है और ब्राइट है। ओके, नाउ अब क्या होता है कि अब हम एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जब वो बोल पूछ रहे हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर से, सो मीन्स वो चाहते हैं, दे आर जस्ट कॉलिंग आउट टू देयर पोटेंशियल कस्टमर्स टू कम एंड बाय देयर गुड्स, दैट इज बैंगल्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके बायर्स आए, उनके पोटेंशियल कस्टमर्स आए और फिर वो क्या करें, उनके बैंगल्स को खरीदें। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जितनी भी बैंगल्स उनके पास हैं। ठीक है, और बताते टाइम, बुलाते टाइम वो क्या है, वो बहुत ही जॉयफुल हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जो कस्टमर्स की हैप्पीनेस है, ठीक है, तो उसी उन्हीं की हैप्पीनेस पे बैंगल सेलर्स की हैप्पीनेस डिपेंडेंट है। All right. Now they say lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. All right. So that means here lustrous tokens or radiant lives क्या होता है? Lustrous means bright and then tokens are the symbols and radiant means happy. So here it means that ये जो bangles हैं, they are the symbol of love and joy in a woman's life. Okay. अब अगर हम देखें कि यहाँ पे वो ये क्या क्यों कहते हैं, मतलब हैप्पी वर्ड क्यों दो बार रिपीट किया गया है, या फिर उनकी जो बैंगल्स हैं वो किसके लिए हैं, तो हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं। सो व्हाई दिस वर्ड हैप्पी हैज बीन यूज्ड, और हम ये कह सकते हैं डॉटर्स क्यों हैप्पी हैं, वाइफ्स क्यों हैप्पी हैं। सो जस्ट बिकॉज वो इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि देखो डॉटर्स क्या कर रही हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं टू बी मैरिड सून एंड दे ड्रीम फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। ठीक है, सो ये जो बैंगल्स हैं वो उनकी हैप्पीनेस को और ऐड कर देती हैं। ठीक है, और जो वाइफ्स हैं, वाइफ्स वो इसलिए हैप्पी हैं जस्ट बिकॉज दे आर कंटेंटेड विद देयर मैरिटल लाइव्स। ऑल राइट, और दे वियर बैंगल्स इन ऑर्डर टू शो देयर ब्लिसफुलनेस। ओके, या फिर ब्लिसफुल लाइफ। अच्छा, एक चीज और है दैट बिकॉज द वी कैन से दैट इन इंडियन कल्चर विडोज वर नॉट सपोज टू वेयर बैंगल्स, at least it is not practiced in present time, it was a practice of the past, in the past, okay, but still, so इसीलिए जो बैंगल्स हैं, ठीक है, ये women की लाइफ में बताते हैं कि कितना जॉय है, कितनी हैप्पीनेस है। और जब भी कोई विमेन शाइनिंग बैंगल्स पहनती है, तो इट कन्वेज दैट दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। ऑल राइट, एंड ये इससे ये भी सिंबलाइज होता है दैट शी इज वेल केयर्ड फॉर एंड शी इज कॉन्शियस ऑफ हर ओन ब्यूटी एज वेल। ऑल राइट, और हम अगर नेक्स्ट स्टैंजा को देखें, दैट इज जो जिस स्टैंजा में पोएट ने, बैंगल सेलर्स ने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेज जो है विमेन की लाइफ की उसको डिस्क्राइब किया है, दैट इज अ मेडन। ओके, तो यहाँ पे वो क्या बोलता है, कहता है सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रेस्ट। ऑल राइट, सो यानी कि कुछ बैंगल्स ऐसी भी हैं उसके पास, वो कहता है जो कि मेडन के रेस्ट के लिए सुटेबल है। मेडन मतलब यंग अनमैरिड गर्ल। ओके, तो कौन से वो कलर्स ऑफ बैंगल्स हैं, तो सिल्वर एंड ब्लू। ओके, सिल्वर एंड ब्लू ये वो कलर हैं जो मेडन की रेस्ट के लिए सुटेबल एंड दे आर जस्ट लाइक द माउंटेन मिस्ट। ठीक है, माउंटेन के मिस्ट की तरह एकदम लगते हैं वो। तो यहाँ पे बैंगल सेलर्स ने माउंटेन के मिस्ट के साथ इसलिए कंपेयर किया बिकॉज वो ये बताना चाहता है कि यहाँ पे जो बैंगल्स हैं, दे आर जस्ट एज डेलिकेट एज द इल्यूसिव एंड द फार अवे माउंटेन मिस्ट। सिमिलरली यहाँ पे जो यंग गर्ल्स हैं, जो मेडन्स हैं, वो भी क्या है, वो भी बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं।
ठीक है, जिस तरह से माउंटेन मिस्ट ब्यूटीफुल लगता है, वे इन द सेम वे गर्ल्स भी, यंग गर्ल्स भी जो हैं वो मेडन्स, वो भी क्या होती हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं. ऑल राइट. Next, some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Okay, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है कुछ मेरे पास ऐसी भी बैंगल्स हैं जो कि फ्लश्ड मीन्स रेड, रेड कलर की हैं, एंड दे आर लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम. जो, और वो किसकी तरह है, वो उन बर्ड्स की तरह है जो कि क्या करती हैं, वो ड्रीम करती हैं. कहाँ पे, ऑन द ट्रैंक्विल ब्राउ ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम. सो इसका मीनिंग क्या हो गया, ट्रैंक्विल ब्राउ ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, इसका मतलब वो होता है कि ये वो बर्ड्स हैं जो कि कहाँ पे ग्रो करती हैं, ऑन द काम सरफेस. ओके, ऑन द काम सरफेस ऑफ अ फॉरेस्ट स्ट्रीम. और क्यों वो काम सरफेस पे ही, फॉरेस्ट स्ट्रीम के पास ही क्यों वो ग्रो करती हैं बर्ड्स, या वहां पे ही क्यों वो ड्रीम करती हैं. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग है वहाँ पे, और बहुत ही सूटेबल है वो स्लीप के लिए, एंड वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. तो इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे क्या करती हैं, वो ड्रीम करती हैं. ड्रीम किस चीज़ के लिए करती हैं, कि वन डे व्हाट विल हैपन, कि वो भी ब्लॉसम करेंगी. ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर. ओके, गॉर्जियस फ्लावर्स. तो जब वो अपने आप को ड्रीम करती हैं गॉर्जियस फ्लावर्स के फॉर्म में ब्लॉसम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, अपनी हाफ क्लोज्ड आईज के साथ इनफैक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ, यंग गर्ल्स के साथ. क्या कि एक दिन उनकी भी क्या होगा, वो लोगों की भी शादी हो जाएगी, दे विल ऑल्सो गेट मैरिड वन डे. इस बात के लिए यंग गर्ल्स भी क्या करती हैं, बर्ड्स की तरह ही ड्रीम करती हैं. ओके, सो अब हम देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं. यहाँ पे हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि बैंगल सेलर्स के पास कुछ ऐसी बैंगल्स भी हैं जो कि बर्ड्स के कलर की हैं, ठीक है, जो प्लांट्स पे हो ग्रो करते हैं बिसाइड द वुडलैंड स्ट्रीम, ठीक है. और ये जो बर्ड्स है वो बहुत ही हैप्पीली और ग्रो करती हैं एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही पीसफुल और रीअश्योरिंग होती है, ठीक है. वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, और वहाँ पे वो ड्रीम कर सकती हैं, ड्रीम करती हैं इनफैक्ट कि वो ब्लॉसम करेंगी गॉर्जियस फ्लावर्स में, ठीक है. और जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, उसको यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है उस सस्टेनर की तरह, जो क्या करता है, जो एकदम वॉच करता है किस चीज़ को, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बर्ड्स का, ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो फैमिली होती है वो भी क्या करती है, इट ऑल्सो वॉचेस ओवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यंग मेडन who dreams of being married one day. And the birds are birds are red, that means flushed, which is a color of desire. और इससे क्या सिंबलाइज होता है, इससे सिंबलाइज होता है मेडन्स की उन लॉन्गिंग्स के बारे में जो उसके हार्ट में होती है एट द टाइम ऑफ गेटिंग मैरिड वन डे. ओके, मीन्स एट द थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड वन डे. So now next it is given that some are aglow with a bloom that cleaves to the limpid glory of the newborn leaves. Okay, so अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बैंगल सेलर्स कह रहे हैं कि कुछ उनके पास ऐसी भी बैंगल्स हैं जो कि क्या करती हैं, ग्लो करती हैं, ठीक है, अग्लो करती हैं विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ द न्यूबॉर्न लीव्स, ठीक है. जैसे उसके पास कुछ ऐसी बैंगल्स हैं जो कि ब्राइट ग्रीन कलर की हैं. कैसा ब्राइट ग्रीन कलर, जो बहुत ही न्यूबॉर्न लीव्स की तरह होता है, जो बहुत ही टेंडर होता है, जिसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी अटैच नहीं होती हैं उसके लीव्स में, ठीक है, एकदम प्योर होते हैं, और वो प्योर होने के साथ साथ वो शाइन करते हैं उनकी फ्रेशनेस और प्योरिटी की वजह से. और यही क्या होती है, उनकी ग्रेट ब्यूटी होती है इन न्यूबॉर्न लीव्स की. और जब उन न्यूबॉर्न लीव्स पे यहाँ पे दिया हुआ है ब्लूम दैट लीव्स, यानी कि जब उन पे क्लियर ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं, लिम्पिड ग्लोरी मतलब ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी अभी न्यूली स्प्राउट हुए हैं उन प्लांट्स पे. तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो पेड़ों पे ग्रो करते हैं, स्प्राउट करते हैं न्यूली, उन पे जब क्लियर ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं तो वो बहुत ही फ्रेश लगते हैं, ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं, एंड उनमें बहुत ही प्योरिटी होती है, किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी अटैच नहीं होती है. ऑल राइट, नेक्स्ट इट इज गिवन. अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बैंगल सेलर्स बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेज के बारे में, ठीक है, ऑफ वुमेन्स लाइफ. सो ही सेज दैट सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न. ओके, अब कह रहा है कुछ उसके पास बैंगल्स ऐसी भी हैं जो एकदम सनलाइट कॉर्न की फील्ड की तरह है, ठीक है, कॉर्न फील्ड्स की तरह है जिसपे सनलाइट पड़ती है, और उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ब्राइट गोल्डन येलो कलर से शाइन करती हैं. और वो किसके लिए सुटेबल है, तो वो उस ब्राइड के लिए सुटेबल है फॉर हर ब्राइडल मॉर्निंग,
ठीक है, एक ब्राइड अपनी ब्राइडल मॉर्निंग पे क्या करती है, इसी येलो गोल्ड एंड येलो कलर की, ब्राइट येलो कलर की वो क्या करती है, बैंगल्स पहनती हैं। और यही जो ब्राइट गोल्डन कलर होता है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है उनके अंदर की सीक्रेट स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग्स को, ठीक है, और उनकी हैप्पीनेस उनके वेडिंग डे पे, और उनका जो उनके फ्यूचर के लिए होप है उस चीज को सिंबलाइज करता है। ऑल राइट, ये जो कॉर्नफील्ड्स हैं जिसपे सनलाइट पड़ती है। एंड देन ही सेज दैट सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। सो व्हाट ही सेज कुछ मेरे पास ऐसी भी बैंगल्स हैं जो कि किसकी तरह है, जस्ट लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, जिस तरह से उसके मैरिज फायर में जो फ्लेम निकलता है, वो जो रेड कलर का फ्लेम निकलता है उसकी तरह, ठीक है, उसके पास कलर्स है, मतलब रेड कलर की उसके पास बैंगल्स हैं, एकदम फायरी रेड कलर की उसके पास बैंगल्स हैं। और वो किसके लिए सुटेबल होती हैं, तो वो ब्राइड के लिए, उसकी जिस टाइम पे वो वॉक करती है और जब वो वोज लेती है, वोज मीन्स प्रॉमिसेस लेती है अपने ब्राइड ग्रूम के साथ, जब वो राउंड्स लेकर के सेरेमोनियल फायर के पास, ठीक है, के अराउंड, मैरिज फायर के अराउंड, तो उस टाइम पे उसके मन में जो ह्यू ह्यू मतलब कलर, तो उसके मन में जो, उसके हार्ट में जो उसका पैशन एक होता है, उसको यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है वो फायरी रेड कलर, ठीक है। तो पैशन उसके वेडिंग नाइट के लिए, ठीक है। और रेड कलर जो है ये बता रहा है कि जो लव उसके मन में है, दैट शी वुड एक्सपीरियंस इन अ न्यू लाइफ, उसको सिंबलाइज कर रहा है। ऑलराइट, उसका लव और उसका पैशन जो है उसकी वेडिंग नाइट पे है। नेक्स्ट इट इज गिवन tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. So that means यहाँ पे tinkling का मतलब हो गया लाइट रिंगिंग साउंड। ओके, जब एक ब्राइड जो होती है वो वॉक करती है और उसके रिस्ट में जो बैंगल्स होती हैं वो एक दूसरे से टच करके जो एक साउंड आता है उसमें से, लाइट रिंगिंग साउंड, उसको यहाँ पे टिंकलिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस साउंड को क्या किया जा रहा है, इसको कंपेयर किया जा रहा है ब्राइड के लाफ्टर और उसके टीयर के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज, पहली चीज तो ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर वाली बात है, इट इज जस्ट अ पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, जब ऑपोजिट चीजों को हम यूज करते हैं एक साथ और एक ही लाइन में, और वो मतलब उसका एक सेंस होता है, एक मीनिंगफुल सेंस निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये एक फैक्ट है कि एक जो ब्राइड होती है वो बहुत ही डिलेमा फेस करती है, ठीक है, बहुत ही डिलेमा में होती है कि एक तरफ तो वो बहुत ही हैप्पी है, ठीक है, क्यों हैप्पी है, और इसी वजह से वो शी ब्रेक्स इनटू लाफ्टर, क्यों, क्योंकि शी इज एंटरिंग इनटू हर मैरिड लाइफ, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो सैड भी है, वो वीप कर रही है, जस्ट बिकॉज शी इज लीविंग हर पेरेंट्स होम वेयर शी स्पेंट ऑल हर लाइफ सो फार। All right, so that is the reason, she's happy also, and she at the same time she's sad also. So यहाँ पे इसके ये जो ब्राइड है, ये जब वॉक कर रही है उस मैरिज सेरेमनी में, तो उस टाइम पे जब ये क्लिंकिंग साउंड आता है, जब वो उसकी बैंगल्स जो होती हैं वो टच करती हैं एक दूसरे को, तो इसी साउंड को पोएट ने कंपेयर किया है ब्राइड के लाफ्टर और ब्राइड के क्राइम के साथ। ऑल राइट, now in the next stanza it is given, that is the last stanza, some are purple and gold flecked gray for she who has journeyed through life midway. ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज बीन डिस्क्राइब, दैट इज व्हेन अ वुमन कम्स टू अ मिडिल एज। ओके, जब वो एक मिडिल एज विमेन बन जाती है, जब एक वो मदर बन जाती है तब। तो यहाँ पे बैंगल सेलर्स कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी बैंगल्स भी हैं जो कि पर्पल है और गोल्ड फ्लेक ग्रे कलर की हैं, और किसके लिए सुटेबल है, एक ऐसे लेडी के लिए जो कि अपने लाइफ के मिडवे में आ चुकी है। ऑलराइट, शी हैज जर्नी थ्रू हर लाइफ मिडवे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, पर्पल कलर जो है, ठीक है, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, तो इट इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। ऑलराइट, इट इज अ सिंबल ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड डिग्निटी। ओके, और जो यहाँ पे गोल्ड फ्लैग कलर है, ठीक है, गोल्ड फ्लैग कलर जो है वो अथॉरिटी, ऑनर एंड एक्सपीरियंस और उसके सेल्फ एश्योरेंस को करता है सिंबलाइज, ठीक है। और ग्रे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे उसकी मेच्योरिटी और उसकी विजडम को सिंबलाइज करता है। क्या कि जैसे जो स्पेक्स ऑफ ग्रे हैं वो क्या करते हैं, दे एड द टच ऑफ मेच्योरिटी विच कम्स विद एज।
ठीक है, दैट कम्स विद एज। तो यहाँ पे उस मेच्योरिटी और उस विजडम को सिंबलाइज कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये उनके लिए सुटेबल हैं जो अपने लाइफ के मिडवे पे आ जाते हैं, whose hands have cherished, whose love had blessed and cradled her fair sons on her faithful breast। ओके, अब ये वो women है जिन लोगों ने क्या किया है, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, नर्चर किया है, they just brought up their children in the families and उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने हाउस होल्ड को बहुत ही फेथफुली क्या किया है, सर्व किया है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है, एकदम सेल्फलेसली उन्होंने अपने हाउस होल्ड को क्या किया है, सर्व किया है। एंड ये विमेन एकदम मेच्योर हो चुकी है, इनके अंदर एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, और वो अपने मिडिल एज में पहुंच चुकी हैं। ठीक है, सो दे हैव केयर्ड फॉर एंड ब्लेस्ड एंड ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन। All right, and they have held their worthy sons close to their hearts। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ना जैसे कि एंड cradled their fair sons on her faithful breast। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब यही है इन शॉर्ट कि जैसे जो विमेन्स हैं वो क्या करती हैं, विमेन आई मीन टू से, वो यहाँ पे इसीलिए फेथफुल यहाँ पे दिया हुआ है ना कि फेथफुल ब्रेस्ट पे, यानी कि एकदम क्लोज टू देयर हार्ट वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा करती हैं, उनको अपने पास रखती हैं, उनको अपना सारा प्यार देती हैं। एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, दैट एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड एट हर हस्बैंड साइड। सो अपने हाउस होल्ड को वो कैसे सर्व करती हैं फ्रूटफुल प्राइड में, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली इतना हो गया that she has been a loving daughter and then a happy bride and then a responsible mother and wife। okay, so उसके जितने भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ने उसको क्या बना दिया, उसको एक परफेक्ट इंडियन विमेन बना दिया है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, एक मेट्रियार्क का उसने पोजीशन अर्न कर लिया है। एंड इट इज द फेज इन अ लाइफ वेयर शी वेयर हर स्ट्रगल्स हैव borne fruits for her। ऑल राइट, और उसने उसके पहले जो फेथफुल ब्रेस्ट वाली बात थी, तो उसमें क्या किया, अपने बेटों को, अपने चिल्ड्रन को क्या किया है, नर्चर किया है, रियर किया है विद लव एंड क्लोज टू हर हार्ट। ऑल राइट, एंड वर्शिप्स द गॉड एट अ हस्बैंड साइड। सो इट सिंपली मीन्स दैट, और उसको इस बात के लिए बहुत ही प्राइड मिलता है, बहुत ही ऑनर मिलता है कि वो अपने जब भी कोई सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज, तब उसको अपने हस्बैंड के साइड में बैठने का मौका मिलता है। शी गेट्स द ऑनर ऑफ सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड एंड वर्शिपिंग गॉड ड्यूरिंग द religious ceremonies। All right, so now the poem has been finished। Okay, here we end the poem, but here we get to know that throughout the poem हमें क्या पता चल रहा है कि जो women है वो क्या करती हैं, हमें दिखाई गई है कि वो ड्रीम करती है अपने मैरिज के बारे में। ठीक है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए टुवर्ड्स अ फैमिली। ठीक है, इवन आफ्टर इयर्स ऑफ मैरिज शी has to sit by her husband's side to worship God, she is not in the center। okay, and fair sons not children here means कि शी इज एक्सपेक्टेड टू गिव बर्थ टू बॉयज ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है इस बात से कि ये जो पोएम है ये हमें बता रही है, यहाँ पे हमें पूरी पिक्चर दिखा रही है, किस टाइप की, ट्रू पिक्चर ऑफ मेनी इंडियन फैमिलीज वेयर women are subjugated and people discriminate between sons and daughters। all right, सो फाइनली थ्रू दिस पोएम हमें एक चीज और पता चलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैंगल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कॉस्मेटिक वैल्यू नहीं है उनकी सिर्फ और सिर्फ, बल्कि वो क्या है, दे आर द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड होप। ऑल राइट, रेदर देन जस्ट बीइंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक वैल्यू वर्न बाय द women on their wrist। ऑल राइट, दैट्स इट, थैंक यू।